Hi guys, a very warm welcome to all of you in Gurmantra Academy. I'm your educator Saranya and we are dealing with immunology. So I guess this will be your last lecture in immunology, but again you will have a practice session on immunology. Maybe that's your next class, we'll see. So today we are going to learn about a very interesting topic, and it's like a hot topic right now, which is just revolutionizing the world. And this particular topic has made everybody look deeply into biotechnology, because biotechnology is a field which is very new to many people. Not many know that. So this particular topic and the current pandemic situation has made the whole world depend upon biotechnology for its survival. So that's a pretty awesome and great thing. So today we will be learning about a very important concept, vaccines. We're going to learn about vaccines, and that too in detail. We'll see about several vaccines and also discuss some about the corona vaccine and the types of corona vaccines that's available. I really hope that you guys have vaccinated yourself, so that's important. So I really hope that you guys are vaccinated. If not, so immediately do that, because 18 plus, they can vaccinate themselves. So it's a good thing that you vaccinate yourselves, so that you will be safe from the variants which come eventually in the future. Because what I think is coronavirus is a very potent virus. It is awesome. I really think it's awesome because it is able to survive despite of several drugs. Can you see there's so many mutations that is making that particular virus to thrive. So that is what is called as survival of the fittest. It is able to survive because it is fit. It is able to adapt to the changes around it in the environment. So that's really cool. Okay, but yeah, it's causing so much of chaos to human beings, but that is not so cool. But yeah, what I can think is that its ability to thrive, survive under several conditions, no matter how much treatment we give, vaccines, they themselves develop into a new strain by mutating. So that is really intelligent move. And but it is sad for us because we are really facing a lot of problems because of that. People are dying, so that is very uncool. So, but in the point of view of the virus, it's very cool. Okay, so what is vaccine? What is vaccine? What is vaccination? Vaccination. Why do we need to vaccinate? And do you know, when you are born itself, there are a set of vaccinations that is given to you so that you do not acquire that particular infection throughout your life. So vaccines are nothing but they are a therapeutic agent. Okay, they are therapeutics. What they do is they prevent the formation of the infection in the future. So they are like uh, a medicine which is given beforehand. So a medicine which is given beforehand that will help you survive. So that is vaccine. And what is the constituent of a vaccine? Okay, what does a vaccine contain? So it basically contains the antigen. It basically contains the antigen. It can be of any form. So all of that form we are going to study in types of vaccine. Okay, so you do not have to worry about that. So these are the antigenic preparations. Okay, these are antigenic preparations which is given to humans or animals. Sometimes it is also given to animals, but let's just keep it to humans itself, which is given to humans for prevention of diseases. Prevention of disease. And how does it do? By increasing the immunity. So this is what your vaccine does. Okay. So vaccines use a variety of different substances ranging from dead microorganism to genetically engineered antigens. Okay, so how does it increase your immunity? हमारी बॉडी में वैक्सीन इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बट कैसे?
वैक्सीन तो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है, कुछ फॉरेन पार्टिकल है, या तो डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर डेड ऑर्गेनिज्म का एक सेपरेट पार्ट हो सकता है, समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, sometimes the DNA can be used, a peptide from that particular microorganism can be used. So all of this is antigenic in nature, right? ये सब antigens होते हैं. तो जब हमारी बॉडी में एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी की डिफेंसेस काम करके इट विल इंक्रीज द इम्यूनिटी बाय व्हाट? बाय एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज की मदद से एंटीबॉडीज की मदद से इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है. ओके, सो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए एंटीबॉडीज क्विकली बन जाते हैं. ओके, जब एक्चुअल वायरस आके अटैक करता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज इसके बारे में है, मेमोरी है, सो इट विल क्विकली मल्टीप्लाई द एंटीबॉडीज एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So a vaccine can be a live attenuated मतलब जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज किया जाता है. But the thing is, the जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म it will not cause disease, क्योंकि उसका जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है ना, पैथोजेनिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी. ओके, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को कम कर दिया जाता है. ओके, यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. ओके, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को कम कर दिया जाता है, पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया जाता है. वायरस जिंदा ही होता है. जिंदा वायरस बहुत अच्छी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है. या तो उसको किल कर देते हैं, या फिर हीट को यूज करके किल कर देते हैं, या फिर केमिकल्स को यूज करके किल कर देते हैं. ये हो सकता है. या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक छोटा सा पार्ट, इस पार्ट को एंटीजन की तरह यूज कर सकते हैं. या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉक्सिन्स, उसको यूज कर सकते हैं एंटीजन की तरह. ओके, सो ये सब क्या करते हैं? आपकी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन में, दैट इज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा काम आता है. सो दिस इज व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन. वैक्सीनेशन क्या होता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. आपको इंजेक्ट किया जाता है एंटीजेनिक प्रिपरेशन से, जैसे आप फ्यूचर में उस डिसीज से बच सकते हैं. वैक्सीन्स में क्या होता है? बेसिकली एंटीजेंस होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन्स. ओके, सो वैक्सीन को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी एबल टू स्टिम्युलेट द इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करना पड़ेगा. सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करेगा मतलब क्या है? मेमोरी सेल्स को बनाना है, मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स को बनाना है, एंटीबॉडीज को बनाना है. अगर ये सब एक वैक्सीन कर सकता है, देन इट्स अ वेरी गुड सक्सेसफुल वैक्सीन. ओके, एंड इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना सके, ताकि जब ओरिजिनल वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, एंटीबॉडीज उस वायरस के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर दे. डू यू अंडरस्टैंड? सो ये जो इंजेक्शन दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक नॉन इम्यून सब्जेक्ट है. नॉन इम्यून सब्जेक्ट मतलब ये एक्चुअल वायरस नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं कॉज कर सकता, ये एक नॉन इम्यून सब्जेक्ट है. ओके, इसकी वजह से डिजीज नहीं होगा, बट इट विल बी एबल टू एक्टिवेट योर इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिवेट योर इम्यूनिटी एंड आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा. ठीक है, वैक्सीनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज के अगेंस्ट आपकी बॉडी में जब वैक्सीन दी जाती है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है, टी सेल बी सेल को बनाता है एंड एंटीबॉडीज को भी बनाता है. ओके, सो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, लाइक अ ब्रॉड कैटेगरी, बट बहुत सारे सब कैटेगरीज भी आ चुके हैं.
सो द फर्स्ट इज योर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब जिंदा वायरस को यूज किया जाता है। अटेन्यूएशन का मतलब है उस वायरस की जो कैपेसिटी है, पैथोजेनिसिटी है, उसको डंप कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। ओके, सो इट्स पैथोजेनिसिटी इज reduced. So that is what is called as attenuation, कम कर देना लाइव वायरस, मगर वो डिजीज नहीं कॉज करेगा। ओके, सो ऐसे टाइप ऑफ वायरस कैसे काम करते हैं? क्या वो डिजीज कॉज करते हैं? नो, दे कांट कॉज डिजीजेस। ओके, नो डिजीज तो नहीं होगा, बट they can induce immune response को वो इंड्यूस कर सकता है। एंटीबॉडी, टी सेल, बी सेल सबको एक्टिवेट कर देगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज अ वेरी गुड लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, यू नो व्हाट, ये जिंदा वायरस है, इसमें पैथोजेनिसिटी कम किया गया है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिवर्ट बैक हो जाए। ओके, पैथोजेनिसिटी को वैसे हम कम कैसे करते हैं? वायरस को अनफेवरेबल कंडीशंस में हम बहुत साल तक रखते हैं, वो अपनी पैथोजेनिसिटी खो देता है, मगर ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली लूज कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, तो जब वो अच्छी खासी एनवायरनमेंट में, सूटेबल एनवायरनमेंट में फिर से आ रहा है, जी रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन रिवर्ट बैक टू पैथोजेनिक फॉर्म, देन दैट इज डेंजरस। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सबसे सेफ टाइप ऑफ वैक्सीन होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है, ओके, मार दिया जाता है, तो अभी वो कोई भी इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता, सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज सब यूनिट एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब है, व्हाट इज द सब यूनिट? मान लो ये है आपका बैक्टीरिया, इसमें से एक छोटा सा सब यूनिट को निकाल कर उसे एंटीजन के फॉर्म में प्रिपेयर करके वैक्सीन बना के इम्यूनाइज कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सब यूनिट कॉन्जुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली क्या करते हैं? दे विल बी हैविंग लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि टॉक्सिन के तरह काम कर सकता है। ओके, दिस कैन एक्ट लाइक अ टॉक्सिन। नहीं तो देर आर सर्टेन बैक्टीरियाज दैट विल रिलीज एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या करते हैं? डिजीज को कॉज करते हैं। तो ऐसे सारे टॉक्सिन को ऑब्टेन किया जाता है और इन्हें इनएक्टिवेट किया जाता है। बेसिकली ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, राइट, दे आर प्रोटीन। उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, मॉडिफाइड टॉक्सिन डिजीज नहीं कॉज कर सकता, नो डिजीज नहीं होगा, बट it can increase the immune response. Okay, so those type of vaccines you call it as toxoid vaccines. Okay, one by one we are going to study in detail about each and every type of vaccine. First is your live attenuated vaccine. So in some cases microorganisms can be attenuated or disabled so that they lose their ability to cause the disease. ठीक है, attenuated मतलब उन्हें कुछ इतनी बुरी conditions में रखा जाता है कि वो अपनी capacity खो देते हैं for pathogenicity and they become like a very weak, बहुत weak होते हैं। Okay, if they are weak, उसको हम vaccine की तरह use कर सकते हैं क्योंकि they cannot cause disease. So some agents are naturally attenuated by virtue of their inability to cause the disease. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि naturally weak होते हैं, तो उनको attenuate करना उतना difficult नहीं है, directly उन्हें हम use कर सकते हैं. Like for example, let's say virus A and virus B are very very similar and related. ठीक है, दोनों almost same है. वायरस ए पैथोजेनिक है, ठीक है, बहुत डेंजरस है, बट वायरस बी पैथोजेनिक नहीं है, नो इट इज नॉट पैथोजेनिक. सो वायरस ए की जगह में वायरस बी को आप यूज कर सकते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन.
जब बॉडी में इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, अगर आप वायरस ए को भी इनोकुलेट करोगे तो वो डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों वायरस बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। सो द फर्स्ट वैक्सीन that was used by was Jenner, ठीक है। Jenner was the first person to use the vaccine. उन्होंने वैक्सीनिया वायरस, जो कि काउपॉक्स वायरस भी हम कहते हैं, इसको उन्होंने इनोकुलेट कर दिया ह्यूमन के अंदर, ठीक है। काउपॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस आर सिमिलर वायरस, ओके। वैक्सीनिया वायरस, ओके, एक ही फैमिली के होते हैं। सो व्हेन यू गिव काउपॉक्स वायरस विच इज नॉट डेंजरस टू ह्यूमन, वो काउ के लिए डेंजरस है, ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं है, तो काउपॉक्स वायरस को वैक्सीन के तरह यूज करके उन्होंने ह्यूमन में इनोकुलेट कर दिया, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अभी इफ दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स वायरस, ही विल नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, क्योंकि काउपॉक्स के अगेंस्ट बॉडी ने जो भी एंटीबॉडीज बनाए हैं दैट विल फाइट अगेंस्ट smallpox, that will fight against smallpox, okay. So attenuation can often be achieved by growing a pathogenic bacteria or virus for a prolonged period time under abnormal conditions, ठीक है। बैक्टीरिया या फिर वायरस को आप कंटिन्यूसली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहे हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब वो कंडीशंस जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। सो वैसे कंडीशंस में जब आप ग्रो करोगे दैट विल बिकम अटेन्युएटेड, ओके। सो दिस सेलेक्ट्स म्यूटेंट्स दैट आर better suited for growth in abnormal culture conditions than in the natural host. इसका एक सबसे सुपर एग्जाम्पल इज BCG वैक्सीन दैट इज गिवन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट ये वैक्सीन यूज किया जाता है, BCG वैक्सीन, ओके। बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, ओके, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, ओके। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेन माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है, इसको वैक्सीन की तरह यूज किया जाता है, ओके। इस स्ट्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में 13 लॉन्ग ईयर्स ग्रो किया जाता है, ओके। सो आफ्टर 13 ईयर्स दिस स्ट्रेन हैज अडेप्टेड टू ग्रो इन स्ट्रॉन्ग बाइल एंड हैड बिकम सफिशिएंटली अटेन्युएटेड। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करना सीख जाएगा, जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टीज स्पेशली पैथोजेनिसिटी। आफ्टर दैट दिस BCG वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ओके। Due to variable effectiveness and difficulties in the follow-up monitoring, BCG is not used in US. US में BCG यूज नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ effectiveness और follow-up monitoring difficult है। The Sabin from the polio vaccine and the measles vaccine both consist of attenuated viral strings. Okay, so other example is your polio virus and measles vaccine. पोलियो, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए अटेन्युएटेड वैक्सीन्स यूज किया जाता है। यू शुड एक्चुअली रिमेंबर सम ऑफ द एग्जांपल्स, एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस अगेंस्ट विच योर अटेन्युएटेड लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स आर यूज्ड, ठीक है। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स का एग्जांपल्स है, ओके। वैक्सीनिया, मीजल, मम, रुबेला कंबाइंड वैक्सीन है, ये तीनों के तीनों एक ही वैक्सीन में दिया जाता है। वैरिसेला चिकन पॉक्स का, इन्फ्लुएंजा नेजल स्प्रे में आता है, रोटा वायरस, जूस्टर, ओके। शिंगल्स आते हैं, उसमें शिंगल्स इज ऑल्सो लाइक आपकी बॉडी में राउंड वॉर्म्स की तरह होते हैं, एंड येलो फीवर। इन सब के लिए लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है आइदर यूजिंग द हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, सिर्फ एक चीज वो कर सकता है, दैट इज इट कैन इंड्यूस योर इम्यून रिस्पॉन्स। ना तो वो कोई डिजीज कॉज करेगा ना रेप्लिकेट करेगा, सिर्फ आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकता है, ओके।
सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हो, इनएक्टिवेट कर रहे हो, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ जाके बाइंड करता है, इट विल बाइंड टू द एपिटोप ऑफ द एंटीजन, ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ बाइंड करता है। तो इस एपिटोप को डैमेज नहीं करना है ड्यूरिंग द इनएक्टिवेशन प्रोसेस। यूजुअली हीट इनएक्टिवेशन प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, तो एपिटोप्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। केमिकल इनएक्टिवेशन में जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज किया जाता है, दैट इज बीन वेरी सक्सेसफुल। वो एंटीजेंस को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल इज योर साल्क पोलियो वायरस, साल्क पोलियो वैक्सीन, ओके, साल्क पोलियो वैक्सीन ये इनएक्टिवेट किया जाता है यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड, ओके ओके। These are some of the examples for your inactivated virus: polio, hepatitis A and rabies. Okay. Next is subunit and conjugate vaccine, जिसे हम purified antigen भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक माइक्रोब के ऊपर अपनी उसकी जो सरफेस होती है, ओके, माइक्रोब की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं बहुत सारे, उसको प्यूरिफाई किया जाता है along with a carrier adjuvant, that is nothing but a carrier, उसको मिक्स किया जाता है and that will be given as an antigen, okay। जैसे कि बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड यूज किया जाता है एंटीजन की तरह, फॉर एग्जांपल निमोनिया में यूज किया जा सकता है, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का जो एंटीजन है उसको यूज करके हम सब यूनिट दे सकते हैं। बिकॉज पॉलीसैकेराइड्स आर टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस, मतलब टी सेल को एक्टिवेट किए बिना ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, दे कैन डू दैट, सो दे आर गुड। Next is high affinity antibody response may be generated against polysaccharide antigen even in infants by coupling the polysaccharides to proteins to form a conjugate. Conjugate का मतलब क्या है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट उतना ज्यादा इफेक्टिव एंटीजन नहीं है, तो इसके साथ एडजुवेंट ऐड किया जाता है प्लस प्रोटीन, कोई एक पेप्टाइड को ऐड किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन इज हाईली इम्यूनोजेनिक, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट इम्यूनोजेनिक, ओके, कार्बोहाइड्रेट इम्यूनोजेनिक काम नहीं करता है, मगर प्रोटीन इज हाईली इम्यूनोजेनिक, सो दैट विल बी यूज्ड। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर योर सब यूनिट वैक्सीन: हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, टाइप बी ऑफ इन्फ्लुएंजा, pertussis toxin, pneumococcus, meningococcus, and you have human papilloma virus. Human papilloma virus is given against the ovary cancer, okay, cervical cancer है ना, उसके against human papilloma virus is given. Next is toxoid vaccine. So usually microorganism can release toxins that can cause diseases in our body like diphtheria, tetanus and pertussis, cholera, ये सब टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में। सो दीज टॉक्सिन विल कॉज डिसीजेस इन अस। सो इस टॉक्सिन को प्यूरिफाई किया जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ओके, इट विल बी इनएक्टिवेटेड एंड दैट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन कैन बी यूज्ड एज अ वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सॉइड वैक्सीन। जैसे कि डिप्थीरिया एंड टेटेनस दोनों कंबाइन करके दिया जाता है, ओके। नाउ वैक्सीन के बारे में हमने देख लिया। There is a need for awareness, okay, awareness की जरूरत है। So I'm going to talk about 3 important vaccines for coronavirus. You know coronavirus is very dangerous. It's a single stranded RNA virus and it is causing several diseases. That is your coronavirus, right? आपकी बॉडी में कोरोना हो सकता है। I really think कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो चुका हो, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली गॉट अफेक्टेड विद कोरोना वायरस। सो आई रियली थिंक बहुत सारे लोगों इसमें से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वायरस ने तबाही मचाया है, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये वायरस अटैक किया ही नहीं हो। कुछ लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, सो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी बॉडी में वायरस आया कब तक, चला कब गया, क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखता। कुछ लोगों की बॉडी थोड़ी वीक होती है, देन इट विल स्टार्ट टू शो द सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, etc.
So there are three very important vaccines being approved in India for this vaccination purpose. One is Covishield, the other one is Covaxin, the third one is Sputnik. Sputnik is by the Russia, okay, Russian vaccine है वो, okay. चलिए अवेयरनेस के तौर पे हम कुछ चीजें जान लेते हैं. क्यों क्यों चाहिए? हम तो अभी क्लास पढ़ रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं. सो व्हाई डू यू हैव टू गेट अवेयरनेस अबाउट कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर कोरोना वायरस इटसेल्फ? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट एग्जाम टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए गेट एग्जाम इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इज इन द मूव, इट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है. ओके, हमेशा द करेंट टॉपिक विल बी द हॉट टॉपिक, वो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो यू शुड डेफिनेटली नो. ओके, ठीक है. सो कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरर्स, कोवैक्सिन, स्पुतनिक के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जान लेते हैं. कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय Oxford AstraZeneca. Okay, Oxford AstraZeneca is a company that is in collaboration with Serum India, Serum Institute of India. Okay, इन दोनों ने collaborate किया है for the development of Covishield. Okay, इंडिया में कोविशील्ड कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन करके बोलते हैं. ओके, सो दीज टू are the very big institutions which have combined together to bring out a very beautiful product. Next is Covaxin. Covaxin is a purely Indian made vaccine. Bharat Biotech is the one which made Covaxin. Okay, Covishield ko okay, if any of you are interested in going to a foreign country for pursuing your education, Covishield ले लीजिएगा, because Covishield is actually approved by FDA, but Covaxin is not approved yet. Okay, but Covaxin is found to be very effective. अगर आप aged people को vaccination के लिए लेके जाओगे, like for example above 60 years, if they have diabetes या फिर blood pressure problems and या फिर कोई kidney disease, उनको कोई भी problem हो, they will always give Covaxin, क्योंकि Covaxin ज़्यादातर old patients के लिए it's good. It will not cause a lot of difficulties for them. Okay, next is Sputnik. Sputnik is by Russia. Okay, Sputnik is developed by Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology in Moscow in Russia. ठीक है, how is it made? अभी हमने बहुत सारे वैक्सीन्स के वैक्सीनेशन टाइप्स के बारे में पढ़ा, ये भी पढ़ा कि वैक्सीन्स कैसे किए, हाउ इज इट मेड. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ऑल्सो. कोविशील्ड क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ अ चिंपैंजीज कॉमन कोल्ड वायरस कॉल्ड एडिनो वायरस. ओके, सो यहाँ लाइव वायरस यूज किया जा रहा है. ओके, लाइव वायरस को हम करियर बना रहे हैं. ठीक है, करियर बना के यूज कर रहे हैं. ओके, लाइव वायरस दैट इज एडिनो वायरस इज मॉडिफाइड मतलब उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है, सो दैट इट कैन कैरी द कोरोना वायरस. इट कैन कैरी द कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन. ओके, स्पाइक प्रोटीन इज हियर एंटीजन. ठीक है, सो एडिनो वायरस में, विच इज एटेन्यूएटेड वायरस, इस वायरस में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके they have made it to carry the gene for spike protein. Okay, and it is vaccinated into humans. So ये spike protein humans में बनता है, and this will act like an antigen and it will be eliminated with the help of antibodies. Okay, next is Covaxin. Covaxin is an inactivated virus. So Covishield क्या है? It is live. Okay, Covishield is a live attenuated virus. Covaxin is a heat killed virus, मतलब inactivated virus. It's an inactivated coronavirus. ये coronavirus itself, it is a coronavirus itself. ठीक है, मगर it is inactivated. ये active नहीं है, infection cause नहीं कर सकता, but it can be like a very good immune response. इसलिए Covaxin का immune response सबसे अच्छा है. नेक्स्ट इज स्पुतनिक 5. स्पुतनिक 5 इट्स अ 2 वेक्टर वैक्सीन, मतलब इसमें 2 वेक्टर्स यूज किए जाते हैं. एक है एडिनो वायरस. ओके, एडिनो वायरस RAS26, ये फर्स्ट डोज में दिया जाता है. सेकेंड डोज में ह्यूमन कॉमन कोल्ड का वायरस दिया जाता है. ओके,
2 वेक्टर्स को यूज करके वैक्सीन बनाया है इसमें. सो पोस्ट वैक्सीन सिम्टम्स, सो पर्सन टू पर्सन यूजुअली सिम्टम्स वेरी करता है, बट यूजुअली इन कोविशील्ड जिस जगह में आपको वैक्सीनेट किया है उस जगह में बहुत ज्यादा पेन, रेडिशनेस, स्वेलिंग, इचिंग होता है, टायर्डनेस, फीवर, ये सब डेफिनेटली होता है. ओके, एंड आफ्टर वैक्सीनेशन फॉर द नेक्स्ट 3 days दे विल आस्क यू नॉट टू हैव नॉन-वेज एंड नॉट टू टेक हेड बाथ और एनी कोल्ड आइटम्स आपको नहीं खाना है, ऐसे करके वो आपको बोलेंगे. कोवैक्सीन में भी, बट कोवैक्सीन इज नॉट मतलब कंपेयर टू कोविशील्ड, कोवैक्सीन में ज्यादा पोस्ट वैक्सीन सिम्टम्स मतलब ज्यादा नहीं है. People are really very normal. I've seen people, they are very normal after having Covaxin, but Covishield डाल के बहुत पेन होता है, but okay, that's okay. It's a approved, FDA approved one. Okay, next is Sputnik. Sputnik में भी you can see that all of these are same. ठीक है, सब में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग होता है, फीवर डेफिनेटली होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी हेडेक होता है, कभी वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कुछ लोगों का लूज मोशन होता है. सो ये दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स. ये सिम्टम्स होना अच्छी बात है बिकॉज योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू द वैक्सीन. ओके, आपकी बॉडी इट इज एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज अ फॉरेन पार्टिकल विच हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड उसके अगेंस्ट वो काम करेगा. ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स विल बी देयर फॉर 1 day, मैक्सिमम 2 days, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो this is just a vaccine, it is just an antigen, it is not an actual disease. आपको ये कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बस आपकी बॉडी एक्नॉलेज कर रहा है कि यस कोई फॉरेन पार्टिकल आया है. ओके, सो दिस इज द फॉरेन पार्टिकल, इसको हमें एलिमिनेट करना है. यूजुअली वैक्सीन जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है. ओके, एंटीबॉडी सब बन जाते हैं, बट एक्चुअल कोरोना वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो द मेमोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन या दिस पर्टिकुलर थिंग will act, this particular vaccine will act as a very important key role in the memory of the antibodies, and it will start producing antibodies. It will go and find the spike protein, neutralize the antigen and kill the microorganism. ठीक है, सो इंटरवल 2 डोजेस है यूजुअली, सो डोजेस के बीच में थोड़ा गैप है. ओके, so Covishield and Covishield, like from first dose to second dose, it is done within like 12 to 16 weeks. Covaxin 4 to 6 weeks. Sputnik 21 days in Russia. ये गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है. एफिकेसी आप देखोगे, so efficacy of Covishield is 70.4% after the second dose. Okay, जो कि 90% तक इंक्रीज हो सकता है. ओके, इफ दे आर done properly. Covaxin की efficacy after the second dose is around 80% and Sputnik की it is very good, around 91.6%. Okay, so usually Covishield and Covaxin, these 2 vaccines are given free by the government. There are several vaccination centers available in different places. आप free में भी आपको ये सब मिल जाता है. Sputnik is definitely Indian made नहीं है, but it is available. इट्स मतलब हम इससे पैसे देके वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, फ्री में नहीं दिया जाता. ओके, सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके लिए दिस यू कैन यूज इट एज अ रिवीजन बॉक्स. इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर लीजिएगा. इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है. ओके, इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन और उसके एग्जाम्पल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें से MCQs पूछा जाता है. Okay, maybe they can ask you a question, which of the following is a live attenuated vaccine? It can be a multiple select question. पूछ लिया tuberculosis, measles, then pertussis, polio. Then you should be able to answer tuberculosis and measles is the correct. ये दोनों नहीं. Okay, so you'll have to answer that. For that you need to by heart the vaccines का नाम. Okay, so this is another revision box. Live attenuated vaccines, inactivated, subunit, toxoid, RNA based vaccine. This is also a new type of vaccine जो कि अभी आ रहा है. इसमें नॉन रेप्लिकेटिंग, ये नॉन रेप्लिकेटिंग है. ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब इन वाइवो में सेल्फ इंटीग्रेशन एंड रेप्लिकेशन कर सकता है. डेंड्रेटिक सेल्स को रिप्लेस करके ये यूज किया जाता है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ RNA based vaccines are called as next generation vaccines. So this is the question, homework question for you. Okay, from which one of the following animals was the
मटेरियल आइसोलेटेड विच वॉज यूज फॉर द वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है काउपॉक्स वैक्सीन, सो आपको आंसर पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन वॉज इन्वेंटेड बाई, ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। सो लेट मी गिव यू दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपने इस क्लास को फुल्ली 100% अटेंशन के साथ दिया है तो यू कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, I hope you guys like the session. Like, share and subscribe to our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।